हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन द प्रीवियस part we have discussed up to question number 36. Now in this part we will begin our discussion from question number 37. Let's begin. Now we have question number 37 is here. The question says, let A and B the two gases and written here Ta divided by Ma is equal to 4 times of Tb divided by Mb, where T is the temperature and M is the molecular mass. If Ca and Cb are the RMS speed, then the ratio Ca over Cb will be equal to. This is the question. Question is directly related to RMS velocity. This is well known fact that the RMS velocity can be given here. The given condition is here, whatever is given in the question, the condition is here, and RMS velocity by formula is correlated as here square root 3 RT divided by M naught. Now we can say RMS velocity is directly proportional to square root T by M naught. Now after taking the ratio of RMS velocities for A and B, RMS velocity for A divided by RMS velocity of B will be equal to square root within the square root Ta over Tb multiplied by Mb over Ma. This comes from this. Okay, I am taking the ratio, and the ratio is here. Ratio is here Ca over Cb. As in the question, Vrms is denoted by Ca and Cb for two gases, then I have written here Ca over Cb. This Ca over Cb ratio will be like this. Now in the question, as you can think that this term is comes from where? The answer is here. This condition is given in the question directly, which is I am putting here. Ta over Tb is replaced by 4 times of Ma over Mb, and the correct choice will be here. Correct answer comes here 2 by 1, and correct choice will be option A. This was the solution for question number 37. Now we have question number 38. Question number 38 says here, at what temperature is the kinetic energy of a gas molecule double that of its value at 27 डिग्री C? काइनेटिक एनर्जी कोई गैस के मॉलिक्यूल का जो भी होगा करा वो डबल हो जाए, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पर उसकी काइनेटिक एनर्जी रही हो, उसका डबल हो जाए, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा? तो आप सभी लोग देखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो किसी गैसियस मॉलिक्यूल का होता है वो होता है 3/2 kT. ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी गैसियस मॉलिक्यूल का यहाँ पर 3/2 kT के बराबर होता है. इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया कैपिटल T. ओके, नाउ इस हिसाब से अगर हम देखते हैं बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का दो केसेज में अगर हम रेशियो लें तो ये रेशियो आ जाएगा K1 ओवर K2 इक्वल टू T1 बाई T2. दैट मीन्स K1 बाई K2, उसने कहा काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए. इसका मतलब ये हो गया K1 अगर हमारा पहला है तो दूसरा वाला 2K1 हो जाए, और पहला टेम्परेचर जो हमारा था प्रीवियस वाला वो T है, तो अगला कितना होगा? ये पूरा मैं सॉल्व करूं तो यहाँ T2 की वैल्यू 2T आएगा, और यहाँ के अंदर T2 की वैल्यू 2T आने का मतलब T की वैल्यू 27 डिग्री C इन दी सेंस 300 केल्विन था, यानी कि ये 600 केल्विन हो गया, और डिग्री C में 273 माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 327 डिग्री सेल्सियस. और ऑप्शन में अगर हम खोजने जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन में हमको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन सी, विच इज 327 डिग्री C. you can check in option. The options are given here. The correct choice will be here option C. Option C is the correct choice. This was the solution for question number 38. Now let's move down to question number 39. Question number 39 says here, read the given statements and decide which is or correct on the basis of kinetic theory of gases. Okay, there are some statements which are given one by one,
एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के आधार पर उसने ये पूछ रखा है कि कौन सा इसमें से विच आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ओके देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक दिस, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज जीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कह रहा एनर्जी जीरो होगी, नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एनर्जी जीरो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, बशर्ते पूरा यहाँ पर हम देखें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी होता है। यहाँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नाम तो इसने लिया ही नहीं। RMS स्पीड ऑफ डिफरेंट गैसेज आर सेम एट सेम टेम्परेचर, नहीं, डिफरेंट गैसेज अगर हैं, डिफरेंट गैस होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के अंदर डिफरेंट गैस होने का सेंस ये हुआ उनके मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होंगे, और अगर टेम्परेचर सेम रखा जाएगा तो उनकी RMS वेलोसिटी अलग अलग होगी। ओके, और थर्ड में कहा गया है फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑल आइडियल गैसेज काइनेटिक एनर्जी सेम एट सेम टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा सेम होगा अगर सेम टेम्परेचर पे 1 ग्राम किसी भी गैस का लिया जाए तो कह रहा सेम होगा। आइडियल गैस, ऑल आइडियल गैस, ऑल आइडियल गैस के केस के लिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैटर आ जाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ एक स्टेटमेंट और बचा, इसको भी पढ़ लेते हैं फिर समझना शुरू करते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ ऑल आइडियल गैसेज काइनेटिक एनर्जी सेम एट सेम टेम्परेचर। तो देखिए पहला गलत, दूसरा गलत, इन दोनों में कोई तो हेजिटेशन वाली बात है नहीं। अगर आप सबको हेजिटेशन हो सकता है तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पे हो सकता है, उसको मैं ऐसे रिजॉल्व करता हूँ। देखिए थर्ड स्टेटमेंट में जो उन्होंने नाम लिया ऑल आइडियल गैस, और फोर्थ स्टेटमेंट में भी ऑल आइडियल गैस, तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। देखिए अगर मैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के अनुसार जाऊँ, किसी पर्टिकुलर गैस के किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो यहाँ आएगा F/2kT। ओके, एक मॉलिक्यूल का, जहाँ पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उन्होंने कहा सभी आइडियल गैस के लिए सेम होने की बात की है, लेकिन सर आइडियल गैस में भी वो मोनो एटॉमिक हो, में भी वो डाई एटॉमिक हो, में भी वो ट्राई एटॉमिक हो, तो अगर यहाँ एटॉमिसिटी चेंज होगी यानी गैस चेंज होगा तो उसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा उसमें सारे स्टेटमेंट गलत हैं, और अगर सारे स्टेटमेंट गलत हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहले ऑप्शन में कहा ऑल आर करेक्ट, बी में कह रहा फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, एंड सी बोल रहा फोर्थ इज करेक्ट, और डी बोल रहा नन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो गया नन। ऐसे ऑप्शन लगाने के लिए थोड़े से हिम्मत की आवश्यकता होती, कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल यहाँ बच्चों पूरे कॉन्फिडेंस से आप जान जाइए, यहाँ ऑप्शन डी आपका सही होगा, इसमें से कोई नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 says here at 0 Kelvin which of the following properties of gases will be 0। 0 केल्विन पे हम जाते हैं तो क्या जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी। यस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए 0 केल्विन कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। बिल्कुल सही बात कहा गया है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं सर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा। यहाँ पर डेंसिटी क्यों जीरो होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी को जीरो होने की बात कही गई है। 0 केल्विन पे जाएंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ के अंदर जीरो होने की बात कही गई है। देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन रुक जाता है। वाइब्रेशन में भी वो कर रहा हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होना है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ दिखाया है, आप देख लीजिए। एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, और ऑप्शन यहाँ के अंदर करेक्ट जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सेज हियर ऑन कोलाइडिंग इन ए क्लोज्ड कंटेनर द गैस मॉलिक्यूल्स। क्लोज्ड कंटेनर, सपोज करिए हमारा क्लोज्ड कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल गया, दीवारों से टकराया, दीवारों से टकरा कर बाउंस बैक होगा, और इस प्रक्रिया में मोमेंटम का एक्सचेंज करता है। मोमेंटम का एक्सचेंज करने का मतलब ट्रांसफ़र होता है बाय मॉलिक्यूल टू वॉल
तो यहाँ के अंदर ऑप्शन में जरा मैं देखूँ, पहले में कह रहा ट्रांसफर मोमेंटम टू दी वॉल, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। मोमेंटम में ट्रांसफर करने का मतलब कि मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज आया, चेंज क्यों आया, कुछ तो ट्रांसफर हुआ होगा। मोमेंटम बिकम्स जीरो, नहीं जीरो नहीं होगा, मॉलिक्यूल बाउंस बैक हो रहा है, इट मीन्स उसके अंदर मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम लेके बाउंस बैक हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जरूरी नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करे, अगर बिल्कुल कंटेनर के सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा होगा तो हो सकता है परपेंडिकुलर वापस आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही जा रहा हो। परफॉर्म ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन जो है वो परफॉर्म करता है कोलिजन करने पर, ऑन कोलाइडिंग। ब्राउनियन मोशन तो ये अलग ही चीज हो गया, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आया, ऑप्शन ये इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, as you can see, question number 42 says here, when temperature of an ideal gas is increased from 27 degree C to 227 degree C, RMS speed change from 400 मीटर पर सेकेंड to Vs, Vs की वैल्यू क्या होगी यहाँ पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पर एक ही गैस है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास तो वही रहेगा हर कंडीशन में। आरएमएस वेलोसिटी यहाँ स्क्वायर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दो केसेज में मैं रेशियो लूँ तो VRMS2 VRMS1 का रेशियो आएगा स्क्वायर रूट में T2/T1। VRMS2 को बोला है Vs और VRMS1 को क्वेश्चन ने बोला है 400। आप वापस जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं। और यहाँ के अंदर ये जो हमारा T2 टेम्परेचर है वो केल्विन में बनाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा दूसरा वाला टेम्परेचर है वो है 227 डिग्री सी। इसको केल्विन में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा 273, इसमें प्लस करूंगा तो 500 आ जाएगा। और T1 जो है वो दिया है 27 डिग्री सी, और इसको केल्विन में मैं बदलूंगा तो 300, यानी T1 300 T2 500। वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ के अंदर रख दी है। इसको रखने के बाद मैंने ये पूरा सॉल्व किया है बच्चों, तो Vs की वैल्यू यहाँ के अंदर लगभग में आएगा 516 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन में अगर जाके इसको मैं तलाशूं, इसके बारे में खोजूं, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट यहाँ के अंदर जाएगा ऑप्शन ए। दिस विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 43 सेज हियर, क्वेश्चन नंबर 43 सेज हियर, एट टेम्परेचर कैपिटल T, RMS speed of helium molecules is same as RMS speed of hydrogen molecules at normal temperature and pressure। कैपिटल T टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, RMS स्पीड हीलियम मॉलिक्यूल की चलो कुछ रही होगी, कह रहा वो सेम है, इक्वल है किसके, RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन के कितने टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो यहाँ के अंदर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन का कहना है आरएमएस स्पीड हीलियम का और आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन का इक्वल करना है, लेकिन हीलियम कितने टेम्परेचर पर, कैपिटल T केल्विन पर, और यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन की बात की गई। और नॉर्मल टेम्परेचर को जनरली हम 0 डिग्री सी कंसीडर करते हैं, जो कि 273 केल्विन के बराबर होगा। बच्चों यहाँ के अंदर हीलियम के लिए मैंने इक्वेशन लिखा, आरएमएस के लिए स्क्वायर रूट में 3RT डिवाइडेड बाई m0, हीलियम के लिए m0 की वैल्यू 4 मैंने डायरेक्टली रख दी है। और यही चीज़ मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट में 3RT, 0 डिग्री सी इन दी सेंस नॉर्मल टेम्परेचर, 0 डिग्री सी इन दी सेंस 273 केल्विन हो गया, यहाँ रख दिया। और यहाँ के अंदर m0 की वैल्यू मैंने रख दिया हाइड्रोजन के लिए 2। दोनों साइड का स्क्वायर किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद बच्चों ये सब करना तो आपको आता है, आप होशियार हो। कैपिटल T की वैल्यू 546 केल्विन आ रहा है, डिग्री सी में हम इसको बनाएंगे तो ये आएगा 273 डिग्री सी, 273 डिग्री सी आ गया। और इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर जाके खोजूं तो करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 44। Question number 44 says here, for a gas at a temperature capital T, the root mean square velocity VRMS, the most probable velocity VMP, and the average speed V average obey the relation। बच्चों मैंने पढ़ाते समय आपको बताया है कि राम जी का नाम याद रखिए, याद हो जाएगा।
राम में जो आर है, आर फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगला जो लेटर ये है ए मीन्स एवरेज वेलोसिटी, और यम जो लास्ट का लेटर है राम का वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यही ऑर्डर होता है हमारे इन तीनों वेलोसिटीज का। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। और इसको मैंने यहाँ प्रूव करके दिखाया भी है सोल्यूशन में, आप देख लीजिए, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट याद रखिए। आर एम एस बाई फार्मूला होता है स्क्वायर रूट में 3RT डिवाइडेड बाई एम नॉट। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.732 स्क्वायर रूट में RT बाई एम नॉट। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है 8 स्क्वायर रूट में 8RT डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.6 स्क्वायर रूट में RT बाई एम नॉट। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल के लिए इक्वेशन होता है स्क्वायर रूट में 2RT बाई एम नॉट, और ये हो जाएगा 1.414 RT डिवाइडेड बाई एम नॉट। ऑब्वियसली आप सभी लोग देखिए स्पष्ट है, आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बारी आती है एवरेज की, एंड सबसे स्मॉल वेलोसिटी जो यहाँ के अंदर है वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ऑर्डर क्या हुआ, आरएमएस देन एवरेज देन मोस्ट प्रोबेबल। और ऑप्शन में अगर जाके इसी को मैं तलाशता हूँ तो हमको ऑप्शन मिलता है दैट इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 45। 45 question number is here. Question number 45 says here, if VH, VN, VO denote the root mean square velocities of molecules of hydrogen, nitrogen and oxygen respectively at given temperature, then given temperature in the sense question want to say that temperature is same for each and every gas. Now if temperature is same then RMS speed will be inversely proportional to square root में मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पर बेटा तीन मॉलिक्यूल की बात हुई है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। मॉलिक्यूलर मास यहाँ के अंदर जो है ऑक्सीजन की 32, नाइट्रोजन के लिए 28 और हाइड्रोजन के लिए 2 होता है, सबको पता होता है। यहाँ के अंदर इसका मतलब जिसके लिए मॉलिक्यूलर मास इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होने का मतलब ये हुआ जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है उसकी आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। देन बारी होगी नाइट्रोजन की, देन यहाँ पर हमारा जो नंबर आएगा वो होगा ऑक्सीजन का। तो VH, VN, VO दिस विल बी दी ऑर्डर। और अगर हम यहाँ पर जा कर के इसमें इसको देखें कहाँ मिल रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा मिलेगा ऑप्शन बी विच इज़ करेक्ट। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 सेज हियर, इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस आर एफ then the ratio of the two specific heat Cp by Cv। भैया Cp by Cv क्या है? Cp by Cv is gamma which is very famous thing, very famous parameter in kinetic theory of gases, in thermodynamics। Cp by Cv is gamma and by formula this value is equal to 1 plus 2 by f। The correct choice will be here 1 plus 2 by f and correct option will be here option A। Option A is the correct choice. Okay, now let's move down to question number 47. Question number 47 says here, the degree of freedom of a stationary rigid body about its axis will be। stationary rigid body इसको हम मोनो एटॉमिक की तरह से मानेंगे, और अगर मोनो एटॉमिक की तरह से मानेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ के अंदर जो आएगा वो हो जाएगा 3। और यहाँ पर 3 आने का मतलब जो हमारा करेक्ट चॉइस होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 सेज हियर, इक्वेशन ऑफ गैस इन टर्म ऑफ प्रेशर P, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T एंड डेंसिटी D इज। we will have to make relation in 2 conditions as given in the option। 2 thermodynamic states will be there and we have to correlate P, T and D। D for density, T for absolute temperature and P for pressure। Let's see the solution। The solution of this question will be somewhat like this। We will begin our analysis from gas equation PV equal to nRT। PV equal to nRT। PV equal to n in the sense mass upon molecular mass RT,
and here this m will come here and I will now rearrange this equation. This will be equal to p by d। जैसा कि यहाँ आप देखिए v by m लिखा है, v by m को उल्टा करेंगे m by v नीचे आ जाएगा। m by v का मतलब हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी, RT by m नॉट के बराबर हो गया ये। और इस प्रकार से थोड़ा और मेहनत करें तो t को यहाँ लेके चले आए तो p बाई टी इंटू डी इक्वल टू r बाई एम नॉट। अब r बाई एम नॉट एक कांस्टेंट हो गया। गिवन गैस मतलब गैस एक ही है, उसमें केवल प्रेशर, टेम्परेचर या डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है, तो r बाई एम नॉट ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया। और इस पूरे को कांस्टेंट बन जाने की वजह से यहाँ p बाई टी इंटू डी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो दो परिस्थितियों में, दो थर्मोडायनेमिक स्टेट में हम जाएंगे तो यहाँ के अंदर P1 डिवाइडेड बाई T1 D1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2 D2। करेक्ट चॉइस जो हमारा आएगा दिस विल बी ऑप्शन ए, दिस विल बी ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 सेज हियर इन बॉयल्स लॉ व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है बच्चों? बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ टेम्परेचर की बात तो उसने दिया नहीं डायरेक्ट, लेकिन अगर मैं देखूँ PV इक्वल टू NRT से तो गिवन पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बॉयल्स लॉ लागू होता है। N कांस्टेंट तो अपने आप उसमें रहता है, R कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहता है इसका मतलब NRT कांस्टेंट होगा। NRT इज इक्वल टू PV, इसका मतलब PV कांस्टेंट होगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा PV कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन E। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 सेज हियर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ये गैस बाई 5% एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर शुड बी। The question says in order to decrease the volume of a gas by 5%, वॉल्यूम को आपको 5% कम कर देना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं PV इक्वल टू NRT, दिस इज यूनिवर्सल गैस इक्वेशन एंड हियर वी हैव P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। P is inversely proportional to V, or we can say P is directly proportional to V to the power -1। डेल्टा P बाई P एरर वाले इक्वेशन से डेल्टा P बाई P इक्वल टू हो जाएगा -1 डेल्टा V बाई V। अब यहाँ के अंदर जो है डेल्टा P बाई P इक्वल इंटू 100, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि परसेंटेज के टर्म में आ जाए, इतना हो गया। और यहाँ के अंदर उसने कहा है कि वॉल्यूम को 5% डिक्रीज किया गया है। डेल्टा V बाई V इंटू 100 की वैल्यू मैंने 5 की बजाय -5 लिखा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ के अंदर -5 हो गया, यानी कि 5% के बराबर आ गया। यानी प्रेशर में होने वाला, अगर वॉल्यूम को मैंने डिक्रीज कराया तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 5%। ओके, तो यहाँ के अंदर प्रेशर में होने वाला इंक्रीमेंट जो होगा 5% होगा। ऑप्शन बी यहाँ के अंदर करेक्ट जाएगा। आप जाके यहाँ देख सकते हैं, करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर आ गया बी। लगभग में ये हमारा आंसर आया है, शायद यहाँ एग्जैक्ट आंसर दिया, कोई बात नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, आप कर लीजिए, यहाँ बी सही होगा, बाकी बहुत दूर दूर है। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 सेज हियर एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ 0 डिग्री C बिकम्स ट्रिपल। कौन सा टेम्परेचर हम ऐसा लाएंगे कि यहाँ के अंदर वॉल्यूम 3 गुना हो जाए, वॉल्यूम ट्रिपल हो जाए? PV इक्वल टू NRT। देखिए यहाँ प्रेशर की बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, और ना तो कोई क्लू इसके लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि हम प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज होता हुआ मानेंगे। इन्हीं दोनों के चेंज की बात की गई है, यानी वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दो कंडीशन में रेशियो हमारा हो जाएगा V2 बाई V1, V2 बाई V1 इक्वल टू T2 बाई T1। ओके, एंड हियर वी हैव T2 फाइनल टेम्परेचर। T2 will be here V2 by V1 into T1, V2 in the sense 3V, V1 in the sense V, and here
वॉल्यूम को 3 गुना किया गया, इसलिए मैंने 3 भी लिखा फाइनल वॉल्यूम को। और यहाँ के अंदर T1 जो हमारा टेम्परेचर शुरू वाला था वो 273 डिग्री सी था, जैसा कि इसमें जाके देख सकते हैं 0 डिग्री सी इन दी सेंस 273 केल्विन था। ठीक है, तो T2 की वैल्यू यहाँ निकालने पर 819 केल्विन आ गया। 819 केल्विन में ऑप्शन नहीं है तो हम इसको डिग्री सी में चेंज करेंगे तो -273 करना पड़ेगा और हमारा आंसर आएगा 546 डिग्री सी। 546 डिग्री सी। अगर ऑप्शन में जाके मैं इसको देखता हूं तो कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिखता है बच्चों। मैं आपको बता दूं ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 54 जो लिखा है इसको 546 आप बना लीजिएगा, 546 डिग्री सी। नाउ करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर इन दिस वे, ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 says here, two balloons are filled, one with pure helium gas and the other by air respectively. Okay, there are two balloons, one is filled with pure helium and other is filled by air. This is given in question. If pressure and temperature of these balloons are same, then the number of molecules per unit volume is। प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ के अंदर सेम है तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम उसने पूछा क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों देखो इसको ऐसे एंजॉय कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देयर आर टू बैलून्स, फर्स्ट वन इज हियर, सेकेंड वन इज हियर। पहले में हीलियम गैस भरा है, प्योर हीलियम, और दूसरे में एयर भरा है। एज वी नो दैट एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर रूप से सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन मिलेगा, लगभग 79-80%। ऑक्सीजन की बारी उसके बाद होती है एंड देन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बहुत कम होता है, बाकी इनर्ट गैसेज होते हैं। अब यहाँ के अंदर आपसे पूछा गया है PV = nRT। हम यहाँ से देखिए एनालिसिस करते हैं, PV = nRT से शुरू करते हैं। स्मॉल n इट मीन्स नंबर ऑफ मोल है तो स्मॉल n की जगह मैं लिखूंगा कैपिटल N/Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na, आवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ के अंदर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, P × Na, इस Na को मैं यहाँ ले आया और इस V को मैं यहाँ ले गया तो यहाँ पर हो गया N/V। N/V का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके बारे में चर्चा कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ के अंदर बेटा N/V की जो वैल्यू हो गई वो हो गई P/Na/RT, P/Na/RT। तो यहाँ के अंदर जरा इसके राइट हैंड साइड में देखें, प्रेशर कांस्टेंट होने की बात कही गई है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की बात की गई। कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि दोनों जगहों पे सेम है, दोनों जगहों पे सेम होने की बात कही गई। Na तो एक ही रहता है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट हो गया। इस पूरा कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि N/V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर ये कांस्टेंट है बच्चों तो ऐसे पर्टिकुलर केस में N/V की वैल्यू सेम आएगी, और सेम अगर आएगी तो जरा हम यहाँ ऑप्शंस में जाके देखें, यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सेम इन बोथ बैलून्स। दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर। Now let's move down to question number 53. Question number 53 says here, a gaseous mixture, माफ करिएगा, a gaseous mixture consists of 16 gram helium and 16 gram oxygen. 16 gram helium in the sense 4 mole helium and 16 gram oxygen in the sense half mole oxygen. Cp/Cv क्या होगा पूछा गया है। देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ के अंदर 16 ग्राम हीलियम इन दी सेंस 16/4 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ के अंदर 4 मोल हीलियम हो गया। 16 ग्राम ऑक्सीजन इन दी सेंस हाफ मोल ऑक्सीजन हो गया। नाउ आगे क्या करना है हमको, आगे की शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर के अंदर क्या होगा। देखिए अगर हम बिल्कुल आइडियल माने तो कुछ इंटरनल एनर्जी रहा होगा हीलियम के पास, कुछ इंटरनल एनर्जी रहा होगा ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर दोनों की इंटरनल एनर्जी जो जुड़ेगी उसी से मिक्सचर बन रहा है, यानी मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी जो होगी वो उन दोनों की इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन होता है N/RT / γ-1। देखिए RT यहाँ भी छुपा है जो मैंने हटा दिया है ऑलरेडी, RT यहाँ भी है और RT यहाँ भी है।
तो यहाँ पर अगर RT है तो RT यहाँ कैंसिल, क्यों भाई RT कैंसिल क्यों कर दिया? क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कोई जिक्र है नहीं। मिक्सचर है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का टेम्परेचर फाइनली सेम हो ही गया होगा मिक्सचर के अंदर, R की वैल्यू सेम है ही। अब यहाँ जो जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं केवल उसको मैंने दिखाया है। अब आप सभी लोग देखो यहाँ के अंदर क्या होगा बच्चों, N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम, अभी मैंने आपको बताया 4 था। N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया यहाँ क्या था 1/2 था। नंबर ऑफ मोल यहाँ हीलियम प्लस ऑक्सीजन हो गया। यहाँ के अंदर हो गया गामा 1 हीलियम के लिए 5/3, गामा 2 ऑक्सीजन के लिए 7/5 और मिक्सचर के लिए गामा आपसे पूछा गया क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इन सभी चीज़ों की वैल्यू रख करके बच्चों मैंने पूरा सॉल्व किया है। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन है, मैं धीरे धीरे इसको ड्रैग करता हूँ। आप देखिए आई होप समझ गए होंगे। ये पूरा सॉल्व करते गए हैं और सॉल्व करते 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 अल्टीमेटली यहाँ मैंने जो आंसर निकाला है वो है 1.62। मैं एक बार फिर से शुरू से दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना तो आप देख चुके होंगे। आगे ये देखिए, यहाँ पर आगे ये देखिए फाइनल सोल्यूशन यहाँ आपको मिल गया। ओके, और यहाँ पर जो हमारा आ रहा 1.62, अगर इस चीज़ को मैं ऑप्शन में जाके देखता हूँ बच्चों तो 1.62 हमारा मिल रहा ऑप्शन डी में, और इस तरह से हमारा करेक्ट जो आंसर होगा 1.62 और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 सेज हियर वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस आर वी, P and T, वॉल्यूम इज V, प्रेशर इज P एंड टेम्परेचर इज कैपिटल T। बहुत अच्छी बात है। इफ मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज स्मॉल m, मॉलिक्यूल का मास, ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, ना कि मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m है। दोनों में अंतर होता। मॉलिक्यूलर मास का सेंस वहाँ पर एक मोल से जनरली हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m दिया है। देन इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, और हमें आंसर देना है एम के पी और टी के टर्म में। जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर देखिए आर गैस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इट मीन्स उसको कहीं हटाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ दिखाया। आप सभी लोग देखो ध्यान से। हम अपने सोल्यूशन की शुरुआत करेंगे PV = nRT से, विच इज ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। PV = n इन द सेंस m/m0। अब यहाँ m इन द सेंस मास, पूरे गैस का मास, क्योंकि m क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल का मास दिया है तो m ना लिखकर मैं यहाँ m' लिख देता हूँ, ये पूरे गैस का मास हो गया। RT, यहाँ पर RT हो गया। अब देखो बच्चों P /m' V, इस V को मैं यहाँ ले आता हूँ, ये हो गया RT/m0। ध्यान दीजिएगा यहाँ के अंदर इसको मैं सॉल्व करते गया हूँ, ये हुआ पूरे गैस का मास अपान पूरे गैस का वॉल्यूम, यानी गैस की क्या आ गई डेंसिटी, ये हो गया RT/m0। यहाँ पर देखो बच्चों आगे मैंने क्या किया है, आगे मैंने कुछ ऐसे सॉल्व किया है, ये देखिए D डेंसिटी इन दी सेंस हो जाएगा, P × m0। डेंसिटी को निकालेंगे P × m0, या पहले इसी को देख लीजिए, P = D × RT/m0 है। इसी को मैं सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। तो देखिए डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी P × m0। अब m0 कैसे इतने के बराबर हो गए, m0 इज द मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल वहाँ शामिल होंगे, आवोगाड्रो संख्या के बराबर, यानी स्मॉल m0 जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो होगा एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m दिया है इनटू आवोगाड्रो नंबर। ओके, एक मोल का एक तरह से मास है, तो एक मोल में एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे आवोगाड्रो नंबर के बराबर। केमिस्ट्री में आप लोग एक महीना तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते ही हो, पता तो होगा ही। यहाँ के अंदर इतना हो गया /RT। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर इस प्रकार से डेंसिटी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी PM, देखिए उसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, PM / RT / NA, NA को मैं नीचे ले आया,
और R बाई Na को हम लोग लिखते हैं K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और इस प्रकार से बच्चों हमारे पास जो फाइनली यहाँ आंसर मिला वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज Pm बाई Kt इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 सेज हियर when a van der Waals gas undergoes free expansion then its temperature। जब कोई वान डर वाल गैस फ्री एक्सपेंशन होता है उसके अंदर तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा वान डर वाल गैस का मतलब रियल गैस, और अगर कोई रियल गैस का फ्री एक्सपेंशन होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है एक तरह से खर्च हो रही होती है और उसका टेम्परेचर घट रहा होता है, मोशन कराने में इंटरनल एनर्जी खर्च होगी। तो ये ध्यान रहे जो मैं बता रहा हूँ ये रियल गैस के लिए, आइडियल के लिए नहीं है। आइडियल होता तब तो कांस्टेंट रहता टेम्परेचर, ठीक है। तो रियल गैस के बारे में यहाँ बात किया गया, वान डर वाल गैस इन दी सेंस रियल गैस, और यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन में उसका टेम्परेचर घटेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। Now we have question number 56. Question number 56 says here if Cp and Cv denoted the specific heat of nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume respectively then। देखो बच्चों एक चीज़ जो मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था वो चीज़ यहाँ ध्यान देना है। Cp और Cv को जनरली जो हम लोग जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R लिखते हैं ना, ये मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया Cp और Cv जो स्पेसिफिक हीट हैं वो पर यूनिट मास हैं। मान लीजिए मास को मैं ग्राम में लिया हूँ तो ग्राम स्पेसिफिक हीट एक तरह से दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है Cp और Cv में यहाँ क्या रिलेशन होगा, गैस यूज हुआ नाइट्रोजन। तो देखिए मैंने मान लिया Cp और Cv क्योंकि सिंबल यहाँ कुछ और दे दिया है, तो मैं मान लो Cp डैश और Cv डैश ये हमारे स्पेसिफिक हीट्स हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। दीज आर दी सपोज मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, अब अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट हैं तो यहाँ के अंदर हमारा जो Cp और Cv दिया वो क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट है। तो एक ग्राम का स्पेसिफिक हीट है और ये कितने का है, एक मोल का स्पेसिफिक हीट है। तो मान लो मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो Cp डैश के जगह पर आ जाएगा Cp 1 ग्राम का, और ऐसे कितने ग्राम होंगे एक मोल में नाइट्रोजन में, 28 ग्राम। तो यहाँ 28 Cp के बराबर हो गया, यानी Cp डैश इक्वल टू 28 Cp माइनस 28 Cv सिमिलरली यहाँ हो गया इक्वल टू R, ठीक है। और इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो आ जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई 28। तो अगर मैं ऑप्शन में जाकर देखूं Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई 28, तो ये जो हमारा ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 says here two thermally insulated vessels 1 and 2 are filled with air at temperature T1 and T2, volume V1 and V2 and pressure P1 and P2 respectively। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दो वेसल हैं जो थर्मली इंसुलेटेड हैं, मतलब उनके बीच में हीट एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो सकता, इंटरेक्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर T1 T2 है, एक का T1 है अगले का T2, एक का वॉल्यूम V1 है अगले का V2 है, एक में प्रेशर P1 है और अगले में P2 है। और ये जो प्रेशर वगैरह टेम्परेचर वगैरह है हवा के लिए, उसके अंदर हवा भरा हुआ, एयर भरा हुआ है। आगे सवाल में कह रहा है इफ़ द वाल्व ज्वाइनिंग द टू वेसल्स इज ओपन, अगर दो वेसल को ज्वाइन करने वाला वाल्व खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, द टेम्परेचर इनसाइड द वेसल एट इक्विलिब्रियम विल बी। इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का क्या हाल होगा। देखिए ये हमारा वेसल है, मैंने यहाँ दिखाया है, एक में प्रेशर P1 है, T1 टेम्परेचर है, वॉल्यूम V1 है, और दूसरे की कंडीशन सिमिलरली ऐसे। और ये थर्मली इंसुलेटेड है, देखिए चारों तरफ से मैंने मोटी सी दीवार बना दी है। अब इनके बीच में कोई वाल्व मान लीजिए लगा हो और इसको मैं ओपन कर दूं तो गैस क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि प्रेशर सेम ना हो जाए। तो यही हमसे पूछा कि बताइए यहाँ पर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ के अंदर क्या आएगा। तो देखिए इसका सलूशन मैंने ऐसे कुछ दिखाया है।
ध्यान से देखिए, टोटल इंटरनल एनर्जी सेम रहना है। इसका मतलब जो इनिशियल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी वही फाइनल कंडीशन में आना है। इनिशियल कंडीशन में दोनों गैसेज अलग अलग कंपार्टमेंट में है। इसका मतलब पहले के लिए हमारे पास एनआरटी की जगह पीवी भी लिख सकते हैं। पहले गैस के लिए हो जाएगा या एयर के लिए हो जाएगा P1V1 डिवाइडेड बाई गामा -1। गामा के लिए आप चिंता मत करिए क्योंकि सभी जगह एयर ही है, सब जगह एक ही होगा। P2V2 डिवाइडेड बाई गामा -1 दूसरे के लिए हो गया। और यहाँ के अंदर फाइनल कंडीशन में, क्योंकि हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और कोरिलेट PV से करना था, तो यहाँ पर PV लिखें या एनआरटी लिखें, जो मिक्सचर हमारा उसके अंदर एनआरटी जब लिखेंगे तो मिक्सचर के अंदर N1 मोल पहले वाले गैस का या एयर का पहले वाले कंपार्टमेंट का में रहा हो और दूसरे वाले का जो नंबर आप मोल है मान लीजिए N2 हो, तो ये हो गया N1 + N2 टी किसका, मिक्सचर का, डिवाइडेड बाई गामा -1, अभी भी एयर ही है। तो यहाँ डिनोमिनेटर से गामा -1 कैंसिल हो जाएगा और अब जो बचेगा वो कुछ ऐसे बचेगा। यहाँ के अंदर आ जाएगा P1V1 + P2V2 = N1 + N2 RT। ओके, और यहाँ के अंदर T की वैल्यू आ जाएगी P1V1 + P2V2 डिवाइडेड बाई N1R + N2R। अब एक चीज़ देखिए, ऑप्शन जो हमारे चारों हैं वो इस टर्म में नहीं दिए हैं। तो देखिए, पहले वाले गैस या एयर के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाऊं तो होगा P1V1 = N1RT1। इसका मतलब N1 × R की वैल्यू हो जाएगी P1V1 डिवाइडेड बाई T1। इसी तरह से N2R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर P2V2 डिवाइडेड बाई T2। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ के अंदर जो हमारे पास N1R है और N2R है। N1R की वैल्यू यहाँ से P1V1/T1 और N2R की वैल्यू जो अभी आप लोगों ने निकाला है यहाँ पर P2V2/T2, ये वाले इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं। ये वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रखेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा कैपिटल T मिक्सचर का टेम्परेचर P1V1 + P2V2 डिवाइडेड बाई P1V1/T1 एंड प्लस हो जाएगा P2V2/T2। ये पूरा मैंने सॉल्व किया बच्चों। इसको सॉल्व करने पर जो हमारा यहाँ एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा कैपिटल T = P1V1 + P2V2 डिवाइडेड बाई T1T2 मल्टीप्लाइड बाई T1T2, माफ करिएगा, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई P1V1T2 + P2V2T2 एंड इन दिस वे द करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन में जाके आप मैचिंग कराएंगे तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको P1V1 + P2V2 इस तरह से जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन सी में मिलेगा, P1V1 + P2V2 मल्टीप्लाइड बाई T1T2 डिवाइडेड बाई P1V1T2 + P2V2T1। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने देखा। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन दैट वी विल हैव क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 सेज हियर, at 0 degree C the density of a fixed mass of a gas divided by pressure is x। डेंसिटी अपान प्रेशर का ये जो रेशियो दिया है सवाल में उसको x लिख रहा है। देन एट 100 डिग्री C रेशियो विल बी, ये जो रेशियो प्रेशर और डेंसिटी का है x है कितने डिग्री C पर, 0 डिग्री C पर। तो अगर 100 डिग्री C पर जाएं तो ये रेशियो क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है। PV = nRT, n के जगह पर मैंने लिख दिया m डिवाइडेड बाई m0 RT। यहाँ Pm0 = mV/RT, उसी को रीअरेंज किया, या मैं लिख सकता हूँ v को यहाँ ले आता हूँ, v × m0 ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई P, यहाँ RT हो गया। और यहाँ पर बच्चों उसने कहा है कि जो रेशियो है, किसका रेशियो है, प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है, एक मिनट ये देखिए आप लोग, यहाँ के अंदर देखिए v × m0 और ये आपका हो गया मास अपान प्रेशर, दिस इज x एंड इफ दिस इज x then x will be equal to Vm0 divided by RT। once again we will go back to question
यहाँ पे जो रेशियो दिया है, कहा है कि फिक्स्ड मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर इज एक्स, यानी मास अपान प्रेशर का रेशियो क्या है, एक्स। वही चीज़ मैंने यहाँ लाया है, देखिए मास अपान फिक्स्ड मास अपान प्रेशर का रेशियो क्या है, एक्स। तो यहाँ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी यम नॉट वी डिवाइडेड बाई आर टी। अब यहाँ पर टेम्परेचर बदल रहा, बाकी चीज़ों के चेंज होने की बात नहीं कही गई है। ये जो यक्स रेशियो है, मैंने यक्स ही उसको लिख दिया, कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री सी पर, यानी 273 केल्विन पर है। तो यक्स जो रेशियो है वो हमारा जो ये आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर दो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टेम्परेचर पर हम इसको जाएं देखने, तो बच्चों x1 डिवाइडेड बाई x2 विल बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। T2 जो हमारे पास पूछा गया है वो 100 डिग्री सी यानी 373 केल्विन हो जाएगा, और T1 0 डिग्री सी इन दी सेंस 273 केल्विन हो जाएगा। x1 की वैल्यू x दिया है, 0 डिग्री सी पर x था, x2 क्या होगा, तो x2 की वैल्यू यहाँ निकालने के बाद जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पर 273 डिवाइडेड बाई 373 मल्टीप्लाइड बाई x, और ये आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 सेज हियर at room temperature the RMS speed of the molecules at certain diatomic gas is found to be 1930 मीटर पर सेकेंड। द गैस इज, उसने कहा है आरएमएस स्पीड किसी मालिक्यूल का जो कि डाइएटॉमिक गैस मालिक्यूल है वो पाया गया 1930 मीटर पर सेकेंड। तो गैस कौन सा रहा होगा, और यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस पर ये पाया गया है, रूम टेम्परेचर पर। तो देखो बच्चों, यहाँ के अंदर वी आर एम एस की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट में 3RT डिवाइडेड बाई यम नॉट, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट हट गया, यम नॉट की वैल्यू कुछ ऐसे हो गई, क्योंकि गैस पहचानने के लिए मुझे मॉलिक्यूलर मास पहचानना होगा कितना आ रहा है। यहाँ बच्चों 3 के जगह पर 3, R के जगह पर 8.3 और T के जगह पर यहाँ मैंने रख दिया 300। रूम टेम्परेचर इन दी सेंस लगभग कैलकुलेशन के आसानी के लिए हम लोग उसको 27 डिग्री सी लेते हैं, यानी 300 केल्विन, और यहाँ VRMS की वैल्यू 1930 दिया है, तो यहाँ के अंदर ये हो जाएगा 1930 का स्क्वायर हो गया यहाँ। ये पूरा आप सॉल्व करके देखना बच्चों, इसकी वैल्यू यम नॉट की लगभग 2 आएगी, और 2 आने का सेंस हुआ हाइड्रोजन गैस, ओके, H2 गैस हो गया। तो यहाँ के अंदर करेक्ट ऑप्शन जो आएगा H2 गैस, दैट मीन्स ऑप्शन ये। यू कैन गो बैक टू क्वेश्चन एंड सर्च फॉर दी ऑप्शन। यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ, देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 says here the speed of 5 molecules of a gas in arbitrary unit are follows 2, 3, 4, 5, 6. The root mean square speed of the molecule. Actual meaning of root mean square velocity in the sense, first we will take the square of all the velocities, then their mean square, और फिर उसका क्या लेंगे, मीन, फिर उसका क्या लेंगे, रूट। तो सभी का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लेने के बाद जितनी बार इसको ऐड किया है मैंने उससे डिवाइड कर दिया, और ये पूरा किस में हो गया, स्क्वायर रूट में। यहाँ सबकी वैल्यू मैंने रख दी, V1, V2, V3, V4, V5 जितने भी हैं सबकी वैल्यू मैंने रख दी, सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर जो आंसर मिला 4.24 मीटर पर सेकेंड मिला। 4.24 मीटर पर सेकेंड मिलने का मतलब जो हमारा करेक्ट चॉइस होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 सेज हियर, क्वेश्चन नंबर 61 सेज हियर, for a gas molecule with 6 degrees of freedom, the law of equipartition of energy gives the following relation between the molar specific heat Cv and gas constant R। बहुत अच्छी बात है। यहाँ Cv की वैल्यू क्या होगी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होगी, तो बच्चों इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला वहीं से निकल के आता है, R डिवाइडेड बाई गामा -1।
क्योंकि यहाँ बात किया गया है कौन से के लिए, यहाँ बात किया गया 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल ले सकते हैं। गामा की वैल्यू 4/3 आएगी और गामा की वैल्यू अगर 4/3 आएगी तो इसको मैं 4/3 - 1 करूँगा, r डिवाइडेड बाई 1/3 हो जाएगा और ये आंसर मुझको मिलेगा 3r। Cp की वैल्यू 3r आने का मतलब ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ के अंदर आएगा और इसको आप जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन में 3r ऑप्शन डी में मिल रहा है। यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 62। Question number 62 says here the specific heats at constant pressure is greater than that of the same gas at constant volume। कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेम वॉल्यूम। अगर सेम गैस की बात किया जाए, ऐसा क्यों? जैसा कि मैं देखता हूँ Cp/Cv इक्वल टू गामा आता है, इसका मतलब Cp बड़ा है क्योंकि गामा तो 1 से ज़्यादा आता है। तो यहाँ के अंदर कह रहा एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज डन इन एक्सपेंडिंग द गैस। यस, ये सही है क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये काम होता तो वर्क डन 0 आता है और कांस्टेंट प्रेशर पर वही हीट प्रोवाइड करते हैं तो वर्क डन भी करना पड़ता है और इसलिए वहाँ पर Cp की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पहला ही हमारा करेक्ट हो गया, बाकी सब यहाँ गलत होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ, देखिए इसका सलूशन कहाँ मैंने दिखाया है, ये रहा, डायरेक्ट यहाँ लिखा मैंने कि यहाँ के अंदर करेक्ट ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 सेज हियर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो होता 3/2 kT, यहाँ मोनो एटॉमिक के लिए हम लोग लिखा करते हैं। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ वो चीज़ मैंने यहाँ प्रूव भी किया है, सोल्यूशन में वही चीज़ दिखाया है जो भी समझाया आपको। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 सेज हियर, क्वेश्चन नंबर 64 सेज हियर the ratio of the vapor density of hydrogen and oxygen is 1/16। वेपर डेंसिटी जनरली मॉलिक्यूलर मास का हाफ हम लोग ले लेते हैं कैलकुलेशन में, तो जो यहाँ पर वेपर डेंसिटी का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूलर मास का भी रेशियो आता है। देन अंडर कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ दियर आरएमएस वेलोसिटी। कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ पर आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो देखिए रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी सेम एज रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो यहाँ पर आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर वगैरह मैं सब सेम मानूंगा, यहाँ पर कुछ कंडीशन है नहीं, केवल वेपर डेंसिटी से कोरिलेट करना है। तो Vrms1 Vrms2 का जो रेशियो होगा कुछ ऐसे आएगा और यहाँ पर जो रेशियो यहाँ पर दो गैसेस की बात की गई है, देखिए वेपर डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी का रेशियो 1/16 है, तो मॉलिक्यूलर मास का भी रेशियो 1/16 होगा। यहाँ m2/m1 है, इसलिए यहाँ पर मैं उल्टा करके लिखूंगा 16/1, ये हमारा आ गया 4/1। और 4/1 अगर आया तो करेक्ट चॉइस अगर क्वेश्चन में जाके हम खोजें तो बच्चों हमको मिलेगा ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 सेज हियर मीन काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितनी मीन काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास होता ½ kT। ये जो है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है किसी गैसियस मॉलिक्यूल की वो ½ kT के बराबर होता है। और ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट चॉइस। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 सेज हियर 1 kilogram of diatomic gas at pressure this much, the density of gas is this much, what is the energy of the gas due to thermal motion? 1 kg of diatomic gas at pressure this much, 1 kg। बहुत अच्छी बात है। यहाँ के अंदर बच्चों एनर्जी का जहाँ तक सवाल है आइडियल गैस मान के चलेंगे तो इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कुछ भी कह लेंगे, nRT डिवाइडेड बाई गामा -1 से आएगा।
और यहाँ गामा की वैल्यू 7/5 डायटोमिक के लिए मैं रख देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने रख दिया क्योंकि एनआरटी में रिलेशन हमको दिया नहीं, तो एनआरटी को हम पीवी से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ वी के जगह पर यहाँ पर पीवी से रिप्लेस किया और वी के जगह पर मैंने लिख दिया मास अपॉन डेंसिटी। ओके, और सारी चीज़ें जो यहाँ दी गई हैं क्वेश्चन में सबकी वैल्यू मैंने रख दी 5/2। चलो मैंने यहाँ से एक्सप्रेशन से लिया, प्रेशर की वैल्यू इतनी दी हुई है और मास अपॉन डेंसिटी जैसा कि क्वेश्चन में मास को दिया गया है 1 kg और डेंसिटी को दिया गया 4 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ और रखने के बाद जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 67. Question number 67 is very simple one. This says here the diatomic gas is heated at constant pressure. What fraction of the heat energy is used to increase the internal energy? डायटॉमिक गैस को हीट किया गया है, कांस्टेंट प्रेशर पर वो भी हीट किया गया है, तो कह रहा कितनी फ्रैक्शन हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करेंगे उसका कितना फ्रैक्शन, उसका कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने में खर्च होगा। इन दी सेंस अगर डेल्टा क्यू हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो कितना इंटरनल एनर्जी में खर्च होगा, ये फ्रैक्शन पूछा गया है। डेल्टा यू की वैल्यू, क्योंकि ये डायटॉमिक है, डायरेक्ट मैं लिखूंगा n 5/2 NR इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन क्योंकि कर चुके हैं कई बार, डायटॉमिक के लिए u की वैल्यू होती है 5/2 NRT, यहाँ डेल्टा u है तो 5/2 NR इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हुई है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी NCP इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी और n कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 5/2 R डिवाइडेड बाई CP। CP की वैल्यू बच्चों होती है गामा R डिवाइडेड बाई गामा -1। ये सभी वैल्यू मैं रखूँगा। यहाँ देखिए R कैंसिल हो गया, एक और चीज़ हटा, यहाँ के अंदर से पूरा मैंने सॉल्व किया। इसी चीज़ को सॉल्व करने के बाद बच्चों यहाँ गामा की वैल्यू मैंने रख दिया डायटॉमिक के लिए 7/5 और ये पूरा सॉल्व कर लिया। ये पूरा सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमको मिला 5/7, यानी हमारा करेक्ट रेशियो होगा 5/7, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। जाके मैं देख सकता हूँ ऑप्शन सी में ये हमारा मिल रहा करेक्ट चॉइस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ दिस पार्ट is finished over here and in next part we will start from question number 68. तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।